Welcome, everyone. Thank you for joining us in this second event of our webinar series with high-profile movers and shakers from Pakistan. Mancha Saab, it is such an honor to have you with us. Thank you very much for making time. I want to give a special thanks to EO Lahore member and our good friend SM Imran for convincing Mancha Saab to take out time for us. Mancha Saab, as you know, EO Lahore is one of the chapters amongst EO Global, which is a collection, a network of entrepreneurs from around the world. And we have several people from EO Lahore, Islamabad and Karachi who are in attendance today, who have questions lined up for you and who have things that they would like to ask you. So thank you for making time. I would like to begin by asking you some questions about you that perhaps are not asked as frequently. Could you tell us what is your biggest joy in life and why? And also, what is your biggest fear in life and why? Thank you for having me. It's my pleasure to have this discussion with all of you. I think my biggest joy is now that I see people who work with me, they should be successful. And by that I mean is that my main job obviously is the bank which I run for the family. Usme I always look at over the years people who have started work with us and who have succeeded. And that's my greatest pleasure. And I have resolved so many of issues where industries were not doing well or businesses. So one had to resolve them and move forward because I could understand their issues more than some people who are in the banking industry. And disappointment, I think there are not many disappointments. Mostly it's been, I've been very lucky also. So koi khas disappointment to nahi hai. But when I see things, that where our country should be and it is where it is, that's one of my disappointments. That when I travel abroad and I look at countries that we have businesses in many countries of the world. You own a bank in Sri Lanka, Bahrain, Dubai, Azerbaijan, and then so many other businesses all over the world. So मुझे ये जरूर feeling होती है कि our country हम लोग कुछ पीछे रह गए दूसरी दुनिया से. That is my apprehension, or I'm not being very happy. But all in all, it's been good luck and things have worked out. But is there anything that you're afraid of? Not really. I'm not afraid of anything. I've seen so many ups and downs. From being young, our family moved from Calcutta. We had businesses in Bangladesh, and which we, had to leave after 1971, and then we had to restart a lot of things. My father died when I was very young, so I had no brothers. I had to start all over my life. So I think there have been things, but all in all, I feel I'm a very lucky guy. That whatever I do works out. I can't help that, but feel that luck has been on my side. I'm sure luck is a big factor, but I think there's a lot that you do that's specific to you that makes you so successful, mashallah. So Mancha Saab, could you share with us what characteristics or traits you think successful people have in common? I think there are two things that you must have in life, One is you must have the passion to succeed, that is very important. That's important. And then ability to take decisions. If I see that, and I made many speeches in universities also, where I go and I tell kids, that all the decisions I made in haste all went right. And all the ones that I thought through, not many of them went right. So out of intuition, one should not be afraid of taking decisions. And people who don't decide things, even if some of them don't go right, are the people who suffer because opportunities never wait for you. Interesting. So make a wrong decision, but make a decision because that's an experiment. Paisa zarur kare. Whatever you
need to move. And I've done things which are quite, it might be stunning for some of the people who are listening to me. And I have been very, as I said, I think some people are very lucky. I mean, we bought this bank from the government. It was being privatized, or some person had offered a better price than us, and he had no intention of buying it. He was one of the biggest defaulters in Pakistan, so he just wanted to put a brake on this privatization. So we couldn't make up our mind. तो मैं हालात आपको बताना चाहता हूँ. तो we were having, it was a winter day, and we were having meetings among our directors. तो मेरी बीवी चाय लेकर आई तो कहती है ये क्या 2 दिनों से सोची जा रहे हो. हमने कहा जी ये बैंक, we're thinking whether we should buy it or not. The price is too, on the higher side. तो कहती है फिर फैसला करो ना. तो हम सारों को बड़ी शर्म आई कि एक औरत हमें कह रही है कि तुम लोग फैसला ही नहीं कर सकते. तो then we decided कि ये इसने हमें ऐसा ताना दिया, let's just buy it, So that was a lucky break. We bought it. और इसी तरह एक और मैं आपको किस्सा बताता हूँ. I lived 2 years in Boston, and one day there was a lot of snow, storm था, और 2 बंदे मेरे पास आए हुए थे. तो इसी तरह we were sitting in my sitting room or in my small flat. तो उनका झगड़ा था आपस में. So the guy who owned Platinum Bank, Father Javed at that time, he was there, and he had gotten into financial troubles. And the guy who had lent him money was Khalid Baimiya of Al Baraka Bank. So they were both sitting there. तो मैं कोशिश कर रहा था कि इनकी सुलह करा दूं और इसको we get it sorted out, So again, luckily, my wife comes in with the same cup of tea, and she says, ये क्या बहस कर रहे हो? And we couldn't go out, इतना storm था बाहर. तो कहती है कि क्या खाजा साहब क्या है? तो कहा जी मैंने इससे ये बैंक का सौदा कर रहा हूँ और ये जो है मुझे कम पैसे दे रहे हैं. तो खालिद भाई मैंने कहा बीबी इसने हमारे पैसे देने, तो हम इसको मुकाना चाहते हैं इस चीज़ को, बट ये प्राइस ज़्यादा मांग रहे हैं. उन्होंने कहा क्या कीमत मांग रहे हैं? तो उसने कहा जी ये मेरे से 21 रुपए पर शेयर मांग रहे हैं. तो खालिद भाई भी ने कहा जी मैं इनको 16 रुपए ऑफर कर रहा हूँ, मैं फंसा हुआ इसको पे. तो मेरी बीवी ने कहा नहीं 18 रुपए होगा, एंड दैट्स इट. सो द बैंक वाज सोल्ड ऑन अ कप ऑफ टी अगेन, सो मैं ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ें होती हैं इस तरह, समटाइम्स यू नीड टू टेक अ डिसीजन. और बहुत लोग जो है मैं देखता हूँ कि वो फैसले नहीं करते अपनी ज़िंदगी में. सो दैट्स माय एडवाइस टू यंग पीपल और एनीबॉडी हु इज लिसनिंग टू अस टुडे, that do make decisions. There are many opportunities in the world that we need to harness. और उस पे और भी जो अगर आपके क्वेश्चन हैं तो we can discuss about it. ये आप बताएं तो बिल्कुल we'll go on. There are more questions I have, and then we're going to take people also one by one to ask their questions. But before I do that, I would like to ask you that isn't it your wife's decision making more than yours in both examples that has stopped your intuition ki baat kare? I think the credit belongs with your wife's intuition. She's a very lucky person, and it's very funny that her father also migrated from Calcutta. She comes from the Sehgal family, and when she was born, they put up the first textile mill in 1949. And when she got married, the father used to always tell that you've taken all our family's luck. So ye baatein hain, but I was just saying that you have to take a decision. Right. There are many more things that I have done in my life, which now I look back and they all went right, because ye faisle karne and all that, Now our bank is the largest bank by market capitalization in Pakistan, and our profits are probably the highest also. And since I took over the bank, I paid over 200 billion rupees in taxes only. So ये उस पर भी मैं आऊँगा अगर आप वो क्वेश्चन पूछेंगे on private ownership, privatization, which I have my very strong views on. Wonderful. ये तो सारी वो बातें हैं ना जो आप कह रहे हैं कि things that went well. With the knowledge that you have, if you had to start over all over again, what is something you would do differently? It's very surprising for me to say this, but probably I'll do everything the same way I've done, Mashallah, everything we did, we planned, it worked out very well, We've been through difficult times, but not in businesses, but I've been always
some of the other way at loggerheads with the governments, because I don't take, I don't do anything with a dictation and all that. So उसमें कई दफ़ा problems आते रहे. And now I look back and I say कि मैंने ये नहीं किया, अगर मैं वो कर लेता तो आज मेरा मसले होते. Maybe there were some good things. Masalan, Nawaz Sharif government wanted me to put up a very large coal-based power plant in Rahim Yar Khan. And I said, okay, look, I will do it, but I'll do it my way. We'll do all the processes properly. Masalan, पानी के testing, ज़मीन, ये वो feasibility. और वो मुझे हमेशा कहते होते थे 3 साल में इलेक्शन है, उससे पहले ये प्लांट चलाना है. मैंने कहा this I won't do. And now I look at some of the problems that people are facing. If I had done the way they wanted me to, I would have been covered. इसी तरह these rental power projects, many people ask me कि जरा ये आप you go along with and give the credit जो उनको चाहिए था, which I agree. I said no, I won't do it. बड़ा मेरे पर governments ने pressure डाला और उसका result ये आप देख लें आज जो सारे लोग problems में हैं, because our credit quality in the bank is the best. So they see if I do something, then other people copy it. So वो ये चाहते हैं कि if we do it, then वो बाकी बैंकों में भी उनको credit लेने में आसानी होगी. So that is what does happen at times. Sir, what you see in your future energy mix in Pakistan, and the second part is what you see the CPEC in this government, and how long it will take to import and export the physical export from the CPEC routes in this near future. Well, I think it's a very relevant question because this is happening all over the world, and there is a lot of contradiction in the world. For example, the Germans are closing down all their nuclear plants. Some countries are closing down their coal plants. So इसमें सबसे बड़ा जो problem है, and I own 4 energy companies also, by the way. इसमें एक मसला जो आ रहा है, वो ये obsolescence is now a problem. We are signing contracts for 25 years, and new technologies इसमें आ रही हैं, और उसकी वजह से ये जो आपका question है बड़ा relevant है. For example, now solar is becoming very, very cheap. Some of our parts of Pakistan are near the equator, where the sun rays are the best. So I also operate 5 solar plants now myself, और उसमें इतनी innovation आ रही है, and the batteries are also coming out. तो इसलिए आज आप लोग प्लान नहीं कर सकते कि एक प्रोजेक्ट जो है, जो पुराना हमारा व्यू पॉइंट था कि 25 साल का एग्रीमेंट होगा विद द गवर्नमेंट. तो आई थिंक वी नीड टू चेंज दैट. बट इससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पावर सेक्टर में, वो ये है कि जब तक ये डिस्कोर्स प्राइवेटाइज नहीं होंगे या हम इनमें कंपटीशन नहीं क्रिएट करेंगे. इस वक्त अगर 4 रुपए का बिजली का रेट हमें ज़्यादा लग रहा है इन कंपैरिजन टू आवर कंपेटिटर्स, तो 3 रुपए उसमें डिस्कोस है. तो ये मुझे आप बताएं कि ये किस खुशी से लेस्को, फेस्को ये सारे चल रहे हैं. इसका सिंपल इलाज है कि गवर्नमेंट शुड प्राइवेटाइज दैम, मगर किसी शहर में भी एक कंपनी नहीं होनी चाहिए. जैसे एक लाहौर में लेस्को है तो 3-4 कंपनियां हमें बना देनी चाहिए, एंड देयर शुड बी कंपटीशन. देखिए इस मुल्क में आपको याद होगा कि जब एक टेलीफोन लगवाना होता होगा, सम ऑफ यू आर यंगर, तो एक लोग बड़ी सिफारिशें करते थे, और जब टेलीफोन लग जाता था आपके घर में या आपकी कंपनी में तो बड़ी मुबारकबादें लोग देते थे, हमारा टेलीफोन लग गया. आई सॉ द टेलीकॉम डीरेगुलेशन. PTCL हमने बेचा हमारे मुल्क में, और उसमें भी उसके बाद 4 कंपनियां बन गई हैं, जोंग, टेलीनॉर, ये यूफोन. और तो ये जो कंपटीशन है, 100 रुपए रेट था यहाँ से टेलीफोन की 1 मिनट की कॉल का टू USA. टुडे इज 2 रुपीज, और हर आदमी के पास फोन है. आप वैसे जो यंगर लोग हैं उनको आइडिया ही कोई नहीं है कि टेलीफोन लगवाना कितना आसान था. तो आप देखें कि ये जो है, इसी तरह हमें एनर्जी सेक्टर में इनको अनबंडल करना पड़ेगा. लेस्को, फेस्को, फलाना. अब आप देखें कि बलूचिस्तान सारी में 18% इलेक्ट्रिसिटी की रिकवरी है, जो पैसे आते हैं. हैदराबाद, सक्कर, इवन पेशावर, द न्यू गवर्नमेंट क्लेम्स में हमने KPK में बहुत कुछ किया है.
24% टोटल रिकवरी है इस वक्त फ्रंटियर में. सो इफ वी कैन क्रिएट कॉम्पिटिशन एंड दीज कंपनीज कुड बी अनबंडल्ड, तो ये आप देखेंगे कि आपकी बिजली के रेट बिल्कुल कम हो जाएंगे. और अब तो एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि देयर आर सोलर कंपनीज हु आर कमिंग टू यू. वो एक बिजली का सोलर प्लांट लगाते हैं या सोलर पैनल लगाते हैं. आई जस्ट डन इन आवर कार कंपनी कि वो एक कंपनी आई है, उन्होंने वहाँ लगा दिया है. दे आर चार्जिंग अस 30% लेस देन जो प्राइस होगी अगले 10 साल में, जो भी बिजली की कीमत होगी इन द कंट्री, वो 30% उससे कम चार्ज करेंगे. एंड यू कैन बाय दैट आफ्टर 10 years एट द उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है. सो इतनी इनोवेशन आ रही है इसमें, इतनी नई. इसी तरह विंड मिल्स वगैरह, देयर आर प्लेसेस वेयर वी कैन हैव विंड मिल्स एंड देन पुट बैटरीज आल्सो ऑन दैट. तो अब इस सारे मिक्स में नई इनोवेशन आ रही है एंड ऑब्वियसली योर रेट्स विल कम डाउन. इन गुजरांवाला फॉर एग्जांपल, आई हैव अ सोलर प्लांट जो मेरी डेयरी प्रोजेक्ट को चलाता है. तो जो अगर हम जिस वक्त बिजली पूरी नहीं इस्तेमाल करते तो वी गिव इट टू जेपको जो गुजरांवाला की यूटिलिटी है, एंड एट नाइट उतने ही वो यूनिट हमें वापस कर देते हैं. ये चीज़ आप देखें, अमेरिका में जाएं, लेट्स गो टू सैन फ्रांसिस्को, तो हर बंदे ने जो सोलर लगाए हुए हैं उसमें जो बिजली वो ले रहा है या जब वो चला जाता है काम करने और या उसकी बीवी, तो वो यूनिट वापस चले जाते हैं पेरेंट यूटिलिटी में. तो ये एक बड़ी competitive मार्केट होती जा रही है. एंड इफ वी डोंट हैव एनर्जी व्हिच इज चीप देन यू कांट कम्पीट. तो ये चीज़ें जो है हमारी मार्केट में भी आएंगी. हमारे मुल्क में इंटेंशन तो है हर चीज़ के करने की, डिलीवरी नहीं है. इस मुल्क में, मैं सॉरी टू यूज अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग रिमार्क, पाकिस्तान प्रॉब्लम इज नॉट करप्शन, इट्स इनकॉम्पिटेंस. इस मुल्क में नालायक लोग बहुत ज़्यादा है. तो ये चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा. ये जो सारे पीछे लगे हुए हैं, इसको पकड़ लो उसको पकड़ लो, दैट्स नॉट द रियल प्रॉब्लम. द रियल प्रॉब्लम इज दैट वी नीड टू इन्वेस्ट, टेक डिसीजन, और वो चीज़ों को आगे चलाना पड़ेगा. My question, Assalamu alaikum sir. My question is relating to textile industry. My first question is, what do you think, having this gloomy picture of the cost of the energy mix? Every month we are looking for this GIDC cost, this cost. Do you think the textile industry will still be very much feasible in the coming years? And if it is feasible, which sector within the textile, value addition, knitting, apparel, weaving, what do you think will have the best future, sir? Thank you. I think you have raised a good question. I think energy cost is very important. But इसमें आप देखें जो spinning sector है, उसमें about 30% of your cost is energy. But as you go higher in the value chain, whether you're making garments and whether you're making denims, knitwears, our energy cost is more prevalent in spinning. अगर हमारी यही high energy cost नहीं, तो we might not be able to manage our spinning industry. Addition chain, the cost percentage of electricity is not that much. Look at, for example, Germany में the electricity rate is 21 rupees per unit, which is much higher than Pakistan. But it doesn't matter. It doesn't matter if you are making a Mercedes Benz, 21 rupees unit is not going to bother you. So as if we do not fix our energy sector, then we should go more on the value added, and maybe we'll import yarn from China and so many other countries. Even Oman is now exporting yarn to Pakistan because their electricity is cheap. मंशा साहब, आप पेंडेमिक के इफेक्ट्स के बारे में बताइए. जब तक हमें मजीद सवाल आते हैं हमारे चैट बॉक्स में, पेंडेमिक के बारे में बताइए कि हाउ डू यू थिंक दिस इज इम्पैक्टिंग आवर बिजनेस सेक्टर एंड व्हाट एडवाइस डू यू हैव. आपकी क्या है एडवाइस टू ये जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन है, बहुत अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस हो गई है. हाउ आर यू डीलिंग विद इट एंड व्हाट एडवाइस डू यू हैव? I think some industries have had a bigger problem and some have escaped, and we have been very lucky again. उसमें ये हुआ कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें when it came for the first 2 weeks we were very very concerned कि अब क्या बनेगा. But I must give credit to the State Bank. उन्होंने जो स्कीमें निकाली हैं कि जो वेजेस के ऊपर उन्होंने लोन दिए हैं आपको पहले 3 महीनों के लिए और नेक्स्ट 3 months के लिए भी at almost no interest cost, so that you could support your
workers. तो वहाँ ये हुआ 2 हफ्तों के बाद we realized that the US companies came in, और जो हमारे traditional buyers थे वो तो चुप कर गए शुरू में, but we got very big orders from the US government to make gowns, masks and all these things. So millions and millions of meters of orders were given in various companies in Pakistan. तो हमारा वो जो hit थी वो इतनी hit नहीं लगी हमें उसमें textiles में. But in some industries like airlines, hotels, it's been devastating. जिसका if you look at all the countries of the world, airlines are going bankrupt, the hotels are going bankrupt. You know, it's a very big problem उनके लिए. तो some industries have had worse than the other. और ये बड़ा serious problem है. It's not going to go away, I would say, before the middle of next year. ये अगर लोगों का ख्याल है कि ये 2-3 महीनों में sort out होगा, ये नहीं होगा. But I think in Pakistan the other thing we have done well, better than other. दूसरे मुल्कों से हमने बेहतर किया है. वो ये है कि हमारी फैक्ट्रियों में हमने फौरन इंतजाम किए, और वो any worker goes in has to you have to उसका टेम्परेचर लेना पड़ता है, उसके ऊपर स्प्रे करना पड़ता है, उसको मास्क पहननी पड़ती है, एंड डिस्टेंसिंग भी थोड़ी बहुत की है. सो हमारे लोगों ने इसको वी डेल्ट विद इट, इससे हमने दूसरे लोगों से बहुत बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया है. एंड दैट इज उसकी वजह से आप देखें ये हमारे यहाँ ये जो प्रॉब्लम है ये कम है दूसरे मुल्कों के. और आप तो यू आर इन दिस, आपको तो ज़्यादा मेरे से पता होगा कि योर फैमिली इज इन यू नो टेस्टिंग पीपल एंड ऑल दैट, एंड दे डिड अ वेरी गुड जॉब. अभी तक वो कर रहे हैं. ये है कि कुछ को ज़्यादा हुआ है नुकसान और कुछ को कम हुआ है. तो ये हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, बट द गवर्नमेंट कैन ओनली सपोर्ट अस इफ दे हैव द मनी टू डू इट. तो ये अगर अपने सारे पैसे वापदा में ज़ाया कर देते हैं, और ये जो सारे यू नो गवर्नमेंट का इतना नुकसान है ये पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में, तो गवर्नमेंट विल हैव टू चेक ऑल दीज थिंग्स. तो इससे हमें जान छुड़ानी पड़ेगी. तो इसमें देयर आर एडवांटेजेस, बट ये 1 साल तकरीबन और चलेगा, या कम से कम 10 महीने और रहेगा. Manshur sir, thank you for this opportunity to ask this question, and it's been an excellent session. You were talking about energy. So the PTI government is making quite a few, changes and reforms in the structure of how energy businesses are going to take place over the next 5 to 10 years or 15 years. How do you see the CTBCM market? अब ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मगर इसमें IPPs have now settled. इन्होंने सारों ने सेटलमेंट कर ली है गवर्नमेंट में. IPPs ने भी कुछ कंसेशंस दे दिए, एंड राइटली सो, बिकॉज दीज वर ऑल ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो थे डॉलर्स में थे, और जो 60 रुपए का डॉलर 160 का हो गया है, तो इट वाज हाई टाइम दैट द IPPs शेयर अपने प्रॉफिट्स वगैरह शेयर करेंगे गवर्नमेंट के साथ. तो वो इंशाल्लाह नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएंगे और उसकी मेरे ख्याल उससे बेहतरी होगी. मगर जो ज़्यादा काम करने वाला है वो है डिस्ट्रीब्यूशन की साइड पर, और वो जब तक ना हुआ तो ये सारा हमारा एफर्ट जो है ये वेस्ट हो जाएगा. देयर आर गुड पीपल, अच्छे लोग काम कर रहे हैं हुकूमत में. आप देख लें नदीम बाबर इज देयर, ही नोज दिस बिजनेस, एंड देयर आर सम बाहर से भी लोग लाए हैं इसके अंदर काम करने में. तो अगर एक ये हमने फैसला करना है, जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है ना, हम फैसले नहीं करते, और इसमें जो अगर फैसला कर ले कि जी हमने ये चीज़ों, ये सारा जो है ड्रामा कि जी ये डिस्कोर्स में लेबर है, मजदूर है, ये रौला डालेंगे, ये कुछ नहीं होगा. ये भी मैं आपको बता दूं जाते जाते, जब हमने बैंक प्राइवेटाइज हुए तो इन सारे बैंकों में एक दिन 51,000 पीपल भी सेपरेटेड. उनको हमने बड़ा अच्छा पैकेज दिया रिटायरमेंट का. कोई बंदा बाहर नहीं आया, सब खुशी खुशी से गए, और सम ऑफ देम गॉट जॉब्स इन अदर स्मॉलर बैंक्स जो बाद में आए. तो ये सारा ड्रामा है, ये सब कुछ पॉलिटिकल कुछ नहीं होना. इन चीज़ों को बंद करें, और द सूनर वी डू इट द बेटर इट इज. थैंक यू. एक क्वेश्चन आया है कि आप the role of financial markets in the housing industry, how do you see that role? And mortgage financing looks like a low hanging fruit. What policies will enable this at a mass scale?
ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मगर इसमें मैं आपको बता दूं कि आई एम वेरी मच इन फेवर कि जो अगर हाउसिंग इंडस्ट्री को हम किक स्टार्ट करेंगे उससे 20-30 इंडस्ट्रियां और चलती है, सीमेंट, डोर्स, पंखे, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स उससे चलता है. एंड आई हैव टेकन अप दिस मैटर विद द प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज अंडरस्टूड एंड ही इज गॉट दैट आइडिया. तो अब गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है इसके ऊपर कि जी हमने ये लोन्स, छोटे लोन भी देने हैं लोगों को. मगर इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो अगर हुकूमत ने वो ना किया तो दिस होल एफर्ट विल गो टू वेस्ट. दैट इज द रिकवरी लॉस. जहाँ अगर एक लोन आपने दे दिया है उसको आप रिकवर नहीं कर सकते. हमारी अदालतों में कई साल केसेस चलते हैं. सो आई सेंट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर. एक लॉ है जो जिसको कहते हैं पराटे लॉ इन श्रीलंका. वहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी 3 या 4 किस्तें जो है नहीं देता है एक आदमी, तो वो हमारे हेड ऑफिस में लाहौर आ जाता है एंड वी टेक ओवर दैट प्रॉपर्टी विदाउट गोइंग टू कोर्ट. उससे ये होता है कि ये डर ही होता है कि यू आर नॉट गोइंग टू टेक ओवर पीपल्स प्रॉपर्टीज, कि जो लोन लेता है वो उसको सर्विस करता है. बिकॉज अगर आप सर्विस करेंगे लोन्स को तो फिर आप और लोन दे सकते हैं और कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं. सो द रिकवरी लॉज आर मस्ट. आई हैव टोल्ड, मैंने ये प्राइम मिनिस्टर को भी कहा, एंड व्हेनेवर आई सिट समवेयर कि जी वो सुप्रीम कोर्ट इस पर जजमेंट देने वाला है. कोई जजमेंट कोई नहीं आनी. इस मुल्क में कोई जजमेंट आई नहीं. जस्ट ब्रिंग इन ऑर्डिनेंस एंड आई हैव सेंट द पराटे लॉ टू द प्राइम मिनिस्टर. मैंने वो भी भेजा उसको और मैंने कहा कि इसको कॉपी कर ले. तो आप देख लें, यूएस में मेरे ख्याल 2-3 महीनों में इविक्शन हो जाती है किसी बंदे की, या यूके में चले जाए, लॉज आर इम्प्लीमेंटेड. उससे ये होता है कि जो जेन्युइन लोन लेने वाले हैं उनके लिए आसानी होती है कि कॉस्ट कम हो जाती है. सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड. तो ये अगर हमने मॉर्गेज फैसिलिटी वगैरह करनी है, इसको हमें ये करना पड़ेगा. यहाँ जो कंज्यूमर लोन्स होते थे पुराने ज़माने में, बिफोर आई केम इनटू दिस बिजनेस, वो अजीब थे कि एक आदमी को 6% ओवर काइबोर लगाते थे. कौन बंदा ले सकता है लोन? उसकी प्राइसेस हमने कम की. और कार लोन्स पर भी जो डिफॉल्ट होते थे, वी डिड अ वेरी इनोवेटिव थिंग इन पाकिस्तान. वो हमने ये किया कि मैंने अगर किसी को गाड़ी किराए पर दी है, लीज की है, तो उसकी 2 चाबियां, एक हमारे पास होती थी और एक जो गाड़ी चला रहा है. अगर कोई बंदा उस पर डिफॉल्ट करता था तो वी इन्वेंटेड दैट सिस्टम इन पाकिस्तान. हम उसको शेख वाक ब्रिज पर कहते हैं कि भाईजान आप उतर जाएं, और उसकी गाड़ी जो है उसको हम कहते हैं जी हमारी है. उसके बाद डिफॉल्ट खत्म हो गए. सो यू नो ये सारी चीज़ें जो है, इसको इफ यू हैव द लॉज टू रिकवर योर एसेट्स, देन यू कैन रिड्यूस द प्राइस आल्सो एंड द जेन्युइन पीपल कैन देन बेनिफिट फ्रॉम दैट. और उसके बाद हम हज़ारों कारों की लोन करते हैं, हर महीने होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो यू नीड टू हैव strict laws to recover money. That's where the mortgages will come और ये successfully होने की. सर मेरा नाम तैमूर अजमल इखलास है. आपने अभी तज़किरा किया था इनकॉम्पिटेंस का कि हम भी यही चीज़ फेस कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर. सर आप कुछ गाइड कर सकते हैं बहैसियत स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेज एज अ बिजनेस कम्युनिटी, हम लोग इस इशू को एड्रेस करने के लिए क्या मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं सो डैट कि इस चीज़ को हम लोग एज अ बिजनेस कम्युनिटी कुछ एड्रेस कर सके अपने एंड के ऊपर? कोई आप इस पे कोई लाइट शेड कर सकते हैं जी? और आई थिंक इसके यही कर सकते हैं आप कि मेरिट पर लोगों को रखें, पढ़े लिखे लोगों को रखें. हमारे यहाँ बहुत लोग कहते हैं जी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं है. मैं कहता हूँ यार हमारी जो पढ़े लिखों की आबादी जो भी है इज मोर देन पूरी आबादी ऑफ कई मुल्कों की. और ये भी सारा ड्रामा है कि जी ये देखिए एक गारमेंट फैक्ट्री है, जैसे मेरी बीवी या कोई और चला रही है, और वी डू इसके 2 महीने में एक औरत को हम ट्रेन कर लेते हैं. इट टेक्स अस 2 months. तो लोगों को ट्रेनिंग दे, उसके बाद वो एक गारमेंट बनाती है. शी अर्न्स इनफ मनी, उसका घर में रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, उसकी स्टैंडिंग बढ़ जाती है. तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी नीड टू गिव मोर अपॉर्चुनिटीज टू पीपल. और इसमें आप जो है ना इनकॉम्पिटेंस वैसे आप लोगों में कम है. इट्स मोस्टली द पीपल हु आर इन द गवर्नमेंट. आई कॉल देम मोर इनकॉम्पिटेंट. कि आप कभी देखें कि कितने ब्यूरोक्रेट बैठे. एंड माय जोक विद देम इज कि मैं आई एम नाउ अ सीरियस सिटीजन. इफ आई गो टू समबडीज ऑफिस तो मैं कहता हूँ उनको कि मेरी बात सुनो, बिफोर मेरी बात सुनने के पहले ना करें. जाओ ना, मैंने कहा ना नहीं कर सकते, पहले मेरी गल तो सुन लेना. तो दैट इज द प्रॉब्लम यहाँ पर.
इसी तरह गवर्नमेंट को छोटा कर ले। Why should you go to the government for every small thing? अब ये जो है, I think इमरान also is listening to me, ये LDA के बारे में, CDA, KDA, ये सब इतने बड़े बड़े अजहा हैं, ये कंस्ट्रक्शन को चलने नहीं देते यहाँ पर। अब एक बिल्डिंग बनानी है, तो उसके बेसमेंट बनाएंगे तो एक आ जाएंगे कि जी हमने आपकी इंस्पेक्शन करनी है, 1 महीना काम होता जाता है, वो कंस्ट्रक्शन वाले सारे मजदूर बाहर बैठे हैं, उस कंपनी के इक्विपमेंट भी आइडियल है, फिर 4 मंजिलों पर जाते हैं, फिर करते हैं। इतने इनके इनके इतने नखरे हैं कि यू कांट इमेजिन दैट द थिंग्स दैट यू गिव और द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू गिव इट टू ये इदारे। इसको आप करें कि ये थोड़ा सा लॉज बना दें कि आप ये किसी जगह काम कर सकते हैं, फिर ये नक्शों को पास करना या ये सारा आउटसोर्स कर देना। जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं पाकिस्तान के, उनके यहाँ दफ्तर बना के वो ठप्पा लगा दे कि ये ठीक है। जो आपने करना है, आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है। सो यू डोंट सी, इफ यू गो टू एनी कंट्री, आपको क्रेनें नजर आती हैं, बड़ा सारा काम हो रहा है। यहाँ क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ये ब्रेकें लगाने वाले जो हैं वो सारे इस तरह है। कराची में अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से दैट, वहाँ तो खैर वो KDA ब्रेकें नहीं लगाता, बाकी हर चीज़ जो है वहाँ इतने पैसे देने पड़ते हैं कि मैं तो कराची में काम ही नहीं करता, बिकॉज देयर इज टू मेनी प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें आप भी अपने MPAs को कहें, आप अपने जहाँ सोशल नेटवर्क्स हैं, टॉक अबाउट इट, और ये चीज़ों को ठीक करवाएं ना, हम सारे मिलके करवाएं। जी सलामकुम सर। अच्छा सर, क्वेश्चन ये था कि इन such short span of time China has done tremendously well, और चाइनीज एंटरप्राइज बड़े वर्ल्ड स्केल पे काम कर रही हैं। एक तो ये कि हाउ डू यू सी चाइना डूइंग सो वेल इन सच शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, तो उसकी क्या मेजर रीजंस बिहाइंड इट, एंड देन हमारी क्या लर्निंग हो सकती है इस सारे टेन्योर से? आई थिंक मंसूर साहब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। उससे मैं एक सिंगापुरियन इंडियन की तकरीर सुन रहा था, वो उनका एम्बेसडर था यूनाइटेड नेशंस में, एंड ही सेड कि देयर आर 3 कंट्रीज व्हिच आई एडमायर, ऑब्वियसली चाइना इज वन ऑफ देम। और जब डेंग शोपिन आया चाइना में, तो उसने आकर कहा कि आवर इकोनॉमी इज गोइंग टू बी फ्री एंटरप्राइज, आवर पॉलिटिक्स इज गोइंग टू बी कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है चाइना, इट्स वर्क, एंड दुनिया की हिस्ट्री में नो कंट्री हैज अचीव्ड एज मच एज द चाइनीज हैव डन इन 30 years here। तो वहाँ पर ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है, आप कोई काम भी करना चाहें वहाँ पर कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, और वो डेवलपमेंट में आपको पुश करते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि उन्होंने चाइना डजंट हैव एनी बेसिस इन एनी कंट्री। चाइना की कहीं फौज नहीं लड़ रही, चाइना ने कहीं एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, इट्स जस्ट वन थिंग दैट दे। इसी तरह आप सिंगापुर में चले जाए, वहाँ पर इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप उसको कहते हैं, दे विल सपोर्ट यू, कोई ब्रेक नहीं है आपको लगाता, और वो चीज़ें आपको दुबई लोकेटेड, शेख मोहम्मद एक बंदा है, हर चीज़ का फैसला वो करता है, और देयर इज नो ब्रेकिंग। ये जो है ना हमारी मुल्क में ब्रेकें, ये इसका प्रॉब्लम ये है कि हमें देयर आर टू मेनी पीपल हु आर ट्राइंग टू स्टॉप यू। आप जैसे शरीफ लोग काम करना चाहते हैं, तो ये ले आए, और फिर अगर आपको हेरा फेरी करके आमदन ज़्यादा हो, तो व्हाई वुड यू लाइक टू वर्क? तो दिस इज अनदर थिंग दैट वी नीड टू चेंज इन दिस कंट्री। जहाँ पर भी बड़े अच्छे लोग हैं, they try to changes, मगर हो नहीं सकी, तो कोई चेंज ही कर सके। I mean, look at Jahangir Tareen, and I'm sorry if anybody says anything, he was the most able out of the PTI party members। उसको यही लोगों ने उसके पीछे पड़ गए कि जी इस बंदे ने he told the Prime Minister कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये नहीं हमें चलने दे, ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं इनको खत्म करना पड़ेगा, एंड एज अ सोसाइटी वी शुड ऑल पुश फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, जैसे कि गवर्नमेंट काफी जोर लगा रही है कि इंडस्ट्री आनी चाहिए हमारे सर्वाइवल, इकोनॉमी के सर्वाइवल, तो वेयर डू यू सी द न्यू इंडस्ट्री कमिंग अप इन नेक्स्ट 2 years एंड वेयर? क्योंकि यहाँ को इंडस्ट्रियल स्टेट, देयर इज नो इंडस्ट्रियल स्टेट हियर अराउंड लाहौर। जी हाँ, ये देखें आप, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा
सक्सेसफुल स्टेट है वो फिडमैक है जो फैसलाबाद वाली है, उसको जाके देखें, वहाँ पर ज़बरदस्त वहाँ पर जो लोग लगे हुए हैं काम करते हुए उनको आप जाके देखें। यहाँ लाहौर में भी तो इंडस्ट्री को जो अगर इन्होंने पुश करना है तो ये रूई नाला पर आप देखें, सो मेनी फैक्ट्रीज, वी आल्सो हैव कपल ऑफ फैक्ट्रीज। पानी का डिस्पोजल जो है उसका गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट कि सारा का सारा एक जगह इकट्ठा हो जाए। आप जाके देखें ना चिटागोंग में, आई बीन टू द इंडस्ट्रियल स्टेट, वहाँ कोरियन कंपनीज भी हैं, सारा ये सारे पैराफ्लेनिया जो है ना वो गवर्नमेंट करती है और आपको चार्ज कर देती है, हर आदमी को इंडिविजुअली लगाना पड़ता है। इसी तरह ये जो है आपकी पानी के इश्यूज जो हैं, तो ये सारी इंडस्ट्रियल एस्टेट का फिर उसमें सिक्योरिटी कोई नहीं करनी पड़ती, चार दीवारी पड़ी हुई है और वो सारी इंडस्ट्रियल एस्टेट उसको, वी डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील। आप जाके चिटागोंग में देखें, कोलंबो में जाके देखें, तो वी नीड टू पुश दैट। यहाँ आपको कहते हैं जी इंडस्ट्रियल एस्टेट में आप फैक्ट्री लगा दें, ना तो कोई बिजली देता है, ना आपको कोई पानी, ना कोई गैस। तो दिस शुड बी द जॉब ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कि वन विंडो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करे। तो ये अब गवर्नमेंट कोशिश तो बड़ी कर रही है। You know, whenever I meet the Prime Minister, I find that his intentions are very good. वो कोशिश तो बेचारे बहुत कर रहे हैं, बट वो जो सारा पहला भेजनिया है इर्द गिर्द उनको काम नहीं करने देता, उस पर he needs to break out of that, you know. ये फिर हर जगह पर, और ये छोटे छोटे काम आप क्यों ना करें। If you are making a garment, आप चंद बेशक आपको garment बनाने की जरूरत है, not running around for बिजली, not running around for gas, not running around for all those things. That's the idea of an industrial estate. तो आप जाएं अपने जो MNAs हैं, MPAs हैं, raise your voice there, you know, and try to get this sorted out. Assalamualaikum sir, I've had the privilege to work with you, work for you, followed you as a mentor as well. मैं चाह रहा था कि if you can also guide us on your agriculture business and how you are looking into the corporate farming side and how important it is for our economy also. Anis, it's a very good question. And let me tell you that Pakistan, if you ask me कि क्या बड़े बड़े मसले हैं और उनमें one of them is water. इस मुल्क में पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है। We have no shortage। ये सब गलत बातें करते हैं। देखिए, हम जिस मुल्क में किसी कमोडिटी की कीमत ही ना हो, पानी की कोई कीमत नहीं है इस मुल्क में। The previous Chief Justice साकिब निसार बांडे asked me कि मियां साहब दसो ना है पानी का की करिए। He was holding all this in the Supreme Court. So I did go and get out some. मैंने जाके कुछ statistics इकट्ठे किए and we will be shocked. 2 अरब और 60 करोड़ का पानी सारे नहरों से, दरियाओं से बिक रहा है। This is the billing. और जो एक्चुअल पैसे आ रहे हैं वो 1 अरब और 60 करोड़ रुपए आ रहे थे। That is $13 मिलियन का पूरे पाकिस्तान का पानी बिक रहा है। अब जिस चीज की कीमत नहीं होगी उसको आप वेस्ट करेंगे। यू कैन नॉट यूज इट प्रॉपरली। आप ये गाड़ियां धो रहे हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर सारी आउटडेटेड है। हम जो है पानी फेंक रहे हैं और वो एक तरफ से पानी आ रहा है नालों में और दूसरी तरफ से वो टॉप सॉइल को भी खराब कर रहे हैं और वो जो है पानी भी ज़ाया कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। मैं काफ़ी बड़ी फार्मिंग करता हूँ और उसमें हमारे पास पिवट्स हैं। इफ़ यू गो ऑन द मोटरवे ऑल्सो, सुखिया की के करीब आपको हमारा कोई एक आध फार्म नजर आएगा। पिवट्स आर वेरी वेरी लॉन्ग थिंग्स, यू नो। जिस तरह डॉक्टर्स के पास ड्रिप्स नहीं होती, पिवट इज लाइक अ ड्रिप और हम पानी ऊपर से फेंकते हैं जो, एंड वी यूज ओनली 20% ऑफ द वाटर दैट अदर पीपल आर यूजिंग। और कोई नाला नहीं है, कुछ नहीं है। और वो जो है छोटे छोटे हमने वेदर स्टेशन लगाए हुए हैं टू सी के कोई बारिश जिस दिन होनी है नहीं होनी। तो ये पानी की जब कीमत हो जाएगी तो ये सारे चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। मेरे घर 3-4 दिन पहले गवर्नर स्टेट बैंक आए थे खाना खाने, तो मैंने उसको बताया कि देखो ये आप एग्रीकल्चर में 15 एकड़ वाला जो है उसको तो लोन दे देते हैं। अब 15 एकड़ वाला तो पिवट नहीं खरीद सकता, $1 लाख की आती है और 100 एकड़ को वो घूमती रहती होगा। तो ये आप आने दें, जो पिवट मंगाना चाहता है उसको मंगाने दें। तो ये एक इशू है। दूसरा मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमारे पास काफ़ी बड़ी इक्विपमेंट है जो हम अपने फार्म पे रखी हुई है। अनफॉर्चुनेटली ज़मीन यहाँ मिलती नहीं है, बड़े लीगल इशूज होते हैं। तो हमने अब ये किया है कि जिस तरह ऊबर है,
हमारे फार्म पर somebody has to just call and say कि जी मेरी सोइंग कर दें, मेरी वीट काट दें, मेरा we have equipment which is far surplus to us. तो हम लाहौर से बाबर नगर, sometimes as far as रेंजार खान हमारी इक्विपमेंट जाती है और वो जाकर वहाँ पर काम करके आ जाती है, दूसरे दिन हम पैसे ले लेते हैं। एनीवे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप में से किसी ने एक फार्म देखना हो, हमारे फार्म पर एक साउथ अफ्रीकन है जो उसकी सारी टीम काम कर रही है। तो आपने सारों ने मूवी देखी होगी द मैग्निफिसेंट सेवन देखी हुई है, तो उसमें जो यूल माइनर है, ही इज द गाय दैट यू कैन गो एंड सी दैट। तो उसको मैंने एक दिन कहा कि जब ये मौलवियों का बड़ा झगड़ा चला ना पीछे, कि वो रोडों को ब्लॉक किया हुआ था, तो खिदमतें वो व्हाटएवर इट वाज, तो मैंने उनको फ़ोन किया अपनी टीम को कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप किसी रेस्ट हाउस में आते हैं तो डर तो नहीं लग रहा। तो वो यूल ब्रेनर ने आगे से मुझे जवाब दिया, आप मेरी फिक्र ना करें, इस इलाके में किसी का ट्रैक्टर ठीक करना है तो हम करते हैं मुफ्त, किसी को इलाज करना है तो हम करते हैं, किसी का छोटी सी चीज़ भी खराब हो गई है तो हम मुफ्त जाके उनकी मदद कर देते हैं, और वो सुबह 6 बजे जाते हैं, रात के 10 बजे आते हैं। सो वी आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम आवर फार्म समथिंग लाइक रोड ग्रास, उसको बेल करके कट करके कंटेनर में डाल के हम दुबई, कुवैत वगैरह में यहाँ लाहौर से भेज रहे हैं। सो फार्मिंग का सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा जब आप पानी की कीमत जब हो जाएगी। तो ये जो शुगर क्राइसिस भी रोज का है कि जब गन्ना में सबसे ज्यादा पानी लगता है, जब पानी की रियल प्राइस जहाँ होगी तो वो गन्ना लोग कम उगाएंगे, ये क्रॉप पैटर्न्स भी आपके चेंज हो जाएंगे। तो इस वक्त जब चीनी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो यू आर एक्सपोर्टिंग योर वाटर, तो ये सारा क्राइसिस खत्म हो जाएगा इफ यू स्टार्ट चार्जिंग अ रियल प्राइस ऑफ वाटर। तो ये सारी इसी चीज़ों में मैं कहता हूँ ना कि लोगों को काम करते थे, मार्केट फोर्सेस को काम करते थे, बिजली में भी, पानी में। एंड द अदर थिंग आई वुड लाइक टू सी, एंड ये आप मेरी हर तरफ बात हो गई है, लेट्स सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद इंडिया। क्यों झगड़े में पड़े हुए? यू नो आर 65% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स टिल 1965 वर टू इंडिया। कोई क्या आपको फर्क पड़ता है? अगर हमारे बॉर्डर से एक ट्रक काबुल जाता है तो हमें कोई ना कोई चीज देकर ही जाएगा ना, कोई टायर फिक्स करवाएगा, कोई खाना खा लेगा। इसी तरह अल्लाह करे कि ये अफगानिस्तान में भी मसले हल हो जाए। ये अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है, ही इज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइन, आई गो एंड स्टे विद हिम। वो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, वो भी रोता रहता है कि जी ये सारे हमारे झगड़े खत्म हो और हम आगे। और उसकी बीवी है, शी इज अ क्रिश्चियन लेबनीज। ये जो हम समझते हैं ना कि ये सारे मौलवी इकट्ठे करते हैं, तो ये आप चीजें देखें कि अगर अफगानिस्तान 35 मिनट लगते हैं लाहौर से काबुल जाने में, 1 घंटा और 40 मिनट लगते हैं ताशकंद। लाहौर जाना और ताशकंद जाना बराबर है। ये मुल्क खुल जाए हमारे लिए तो कितनी हमें उनसे एडवांटेजेस मिलेंगी। उन मुल्कों में बड़े लोग पढ़े लिखे हैं बट दे डोंट हैव कमर्शियल नॉलेज ऑफ थिंग्स, तो अल्लाह करे कि ये पानी वाली चीजें, इंडिया, ये सारी चीजें जो है, इलेक्ट्रिसिटी की भी डीरेगुलेशन कर दे तो आप पे लोग काम करेंगे। तो फिक्र ना करो, देयर विल बी लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस कंट्री। हमारे जो बैंक है, वी आर द क्लीनेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। आप इंडिया के बैंक देखें, लंदन, अमेरिका में एवरेज उनकी एडिक्वेसी रेशियो है 7% से भी कम। हमारे सारे बैंक जो है 20% एडिक्वेसी, बिकॉज द बैंक्स वर प्राइवेटाइज्ड एंड दे आर इन अ वेरी गुड शेप एंड वी हैव सो मच मनी दैट वी वांट टू लेंड। उनको बंदे मिले ना जिनको पैसे देने चाहते हैं। थैंक यू। मंशा साहब, आपने जिक्र किया कि अगर हम कभी आपके फार्म आके देखना चाहें द इनोवेटिव थिंग्स यू आर डूइंग, सो ये जरा लॉकडाउन ईज हो जाए, वुड यू बी विलिंग टू वेलकम अस? एनी टाइम एनीबॉडी वांट्स टू कम, आप आए, जरूर देखें कि दिस अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम लाहौर और इट जस्ट टेक्स अबाउट एन आवर टू गेट देयर एंड जस्ट गो एंड सी व्हाट वी आर डूइंग इन फार्मिंग। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इसी तरह अनीस इज हियरिंग, अनीस को भी पता है कि उस इलाके में भी थल जहाँ पर डेजर्ट था, वहाँ भी कुछ लोगों ने ये काम जिस तरह हम कर रहे हैं। तो ये विल ब्रिंग रेवोल्यूशन टू एग्रीकल्चर ऑल्सो। इनको फाइनेंसिंग करें और व्हाई नॉट। एक गरीब आदमी फार्मर है, उसको सीड्स भी महंगे मिलते हैं। अच्छा, वी ऑल्सो नाउ हैव अ सीड कंपनी फॉर कॉटन, तो वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ सीड, उसमें हम नए सीड्स बना रहे हैं। तो ये चीज़ों को गवर्नमेंट की जान छुड़ाए ना इंसानों से। अब मेरे व्हेन आई वाज अ किड, उस वक्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो फैसलाबाद की थी, इट वाज वेरी वाइब्रेंट। जिस तरह वो अंग्रेज उसको छोड़ के गए,
आपको पता है 40,000 अंग्रेज इस मुल्क को चलाते थे, इंडिया पाकिस्तान। ये 90 years में दे ऑल मेड दीज कनाल्स, बराजेस, ये सारी चीजें करके गए, जस्ट ऑल मैनेजमेंट, नथिंग एल्स। Thank you, Mancha Saab. I am the learning chair for the EO Lahore chapter. Made a note of this offer. Inshallah, we will definitely take you up on it. And already members in the chat box are saying that they would love to visit the farm and learn from you. I'm going to unmute Kamal Mia Saab. Please go ahead, unmute yourself and ask your question. Assalamu alaikum. Thank you, Mariam. Mia Saab, it's a really pleasure to listen to you. मेरा सर थोड़ा सा क्वेश्चन इस मामले पे है कि अक्सर अखबारों में पढ़ने में आ रहा है कि जी पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री है, या पाकिस्तान की पावर सेक्टर की इंडस्ट्री है, या फॉर सम पीपल इवन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. दे आर ऑल इंडस्ट्रीज ओनली सर्वाइविंग एंड बीइंग काइंड ऑफ सपोर्टेड हेवीली बाय गवर्नमेंट विद द टैक्स पेयर्स मनी. तो ये अपने स्टैंड अलोन सर्वाइव भी नहीं कर सकती, और ये जो है ना इट्स नॉट फेयर टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी कि गवर्नमेंट जो है ना इन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, और उसकी वजह से जो है ना ही इनोवेशन इनमें कोई बहुत ज़्यादा हो पाई है, ना ही इनमें कोई बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिवनेस आ सकी है. इसमें सर आपका क्या व्यू, बिकॉज यू हैव डेवलप्ड इन ऑल थ्री बिजनेसेस, इज देयर अ मेरिट इन दिस क्रिटिसिज्म which we are seeing, या it is just मीडिया में एक फैशन बन जाता है कि क्रिटिसाइज करना है? I think what you are saying, जो आप कह रहे हैं, इसमें कोई मेरिट भी है, और I'll like to share with you, these are three different industries you are talking about. If you come to the textile industry, ये इंडस्ट्री जो है इसको कोई सब्सिडी खास नहीं मिल रही, ओनली ड्यूटी ड्रॉबैक्स जो आपको दे रहे हैं, और ये सारी दुनिया के मुल्कों में ये चीज़ें हो रही हैं. तो आर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज क्वाइट कम्पिटिटिव ऑन इट्स ओन, एंड माशाल्लाह इट कैन डू मच बेटर ऑब्वियसली, एज आई से कि इट कैन, लाहौर कैन बिकम द गारमेंट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, जिस तरह ये बांग्लादेश ने किया है. वो आई कैन, इफ यू वांट, यू हैव मोर टाइम, आई कैन टॉक टू यू, बिकॉज वी हैड बिजनेसेस इन बांग्लादेश. आई नो द प्राइम मिनिस्टर नाउ, हसीना वाजिद, तो मेरे साथ एक दिन मजाक कर रही थी कि आप ये बोल के भाई ये क्या है, सॉरी आई एम गोइंग ऑफ द ट्रैक अ लिटिल बिट, तो कहती है कि ये जो जाता है उसको आप चोर कहते हैं, जो आने वाला है वो दूसरे को चोर कहता है. तो मैंने कहा तुम्हारा भी तो खानदान यहाँ से बीबी, आपके भी तो झगड़े हैं. तो कह रही कि हाँ हमारे झगड़े ज़रूर हैं, हम हड़तालें कराते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, मगर जो सिग्नेचर वो करके जाती है, दैट्स अ सॉवरेन सिग्नेचर, आई नेवर चेंज इट, and what I do she never changes. हम तो जो कोई पुराना सिग्नेचर भी करके जाता है, उसके सारे वो चोर, उसका खानदान चोर, उसका खानसामा चोर, उसका ड्राइवर भी चोर है. तो यू नो वहाँ पर लॉज है. सो उससे ये होता है कि नीचे लोग काम चलाते रहते हैं, यहाँ उस तरह नहीं है. हमारे यहाँ तो जो नवाशी फैसला कर गया वो गलत है, जो उससे पहले कर गया है. सो इस तरह काम नहीं चल सकते. वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस. ये चोर चोर कहते रहते हैं हम लोग. तो ये जो है ना हमारी इंडस्ट्री, उन्होंने बांग्लादेश में आप जाके देखें, वहाँ कुछ नहीं था जब हम वहाँ, हमारी भी बिजनेसेस थी, और अब उन्होंने, इट्स अ मिरेकल, दे हैव डन व्हाट दे हैव डन देयर, यू नो. और वहाँ का जो जिस आदमी ने ये गारमेंट इंडस्ट्री का पायनियर है बांग्लादेश में, उसका नाम है फारूक सुबान. ही वेंट टू HSN कॉलेज लाहौर, और वो सारा यहाँ का पढ़ा हुआ है. एक दफ़ा मेरी उससे बातचीत हुई है, तो हाउ दे हैव ऑर्गेनाइज्ड वो हमें देखना पड़ेगा, वी नीड टू लर्न फ्रॉम दैट. और ये ब्यूरोक्रेसी वगैरह वहाँ नहीं है. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो हमारी वायबल है, इट्स वेरी कम्पिटिटिव. तो इसमें मैं नहीं समझता. पावर का भी मैंने पहले बताया कि ये अगर प्राइवेटाइज हो जाए, तो ये देखे ना, जब मुशर्रफ के ज़माने में ये प्लांट लगे या उससे पहले लगे बेनज़ीर के, तो उन्होंने लोगों की मिन्नतें की कि ये बिजली नहीं है, आपने पावर प्लांट लगवाए लोगों से, बिकॉज देयर इज ओनली वन बायर. तो आपने वो कैपेसिटी का रोज आता है अखबार पे, तो वो कैपेसिटी के बगैर ये दुनिया का निज़ाम है कि जब वो चलता है या नहीं चलता आपको पैसे देने पड़ते हैं. लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. लेट्स से यू गो एंड गेट अ कार फ्रॉम हर्ट्स, और उससे आप किराए पर लेकर आते, आप अपने घर आते गाड़ी, तो आपका बेटा बीमार होता है तो 4-5 दिन आप घर से बाहर नहीं निकलते.
तो क्या आपने हर्ष वाले को कहेंगे कि मेरा बेटा बीमार था तो मैं कार जो किराए पर लिया मैं पैसे नहीं देता? दिस इज नॉट रॉन्ग. आप सिंगल बायर है, सो यू डू हैव टू पे कैपेसिटी. बट लॉपसाइडेड इस वजह हो गया कि वो 60 रुपए का डॉलर जो है 160 का हो गया. नाउ दिस यू शुड हैव थॉट अबाउट इट एट दैट टाइम. बट अभी भी अगर डिस्कोर्स प्राइवेटाइज हो जाए तो जो बेचने वाले हैं और खरीदने वाले हैं दे विल कम एट एमिकेबल सेटलमेंट अपने आप ही. जहाँ जहाँ प्लांट लगे हुए हैं वहाँ डिस्कोर्स भी है. तो हुकूमत का काम इसमें नहीं रहेगा. तो ये क्रिटिसिज्म सही भी है और गलत भी है कि वी मेड a lot more money than we had thought, but then that was part of the agreement. ये वो गाड़ी जो हमने किराए पर ली थी तो उसके पैसे तो हमने देने थे. अब अगर आपने कॉम्प्रोमाइज करना है तो अब लोगों ने कर लिया उसके ऊपर, ठीक है, उनको आप पैसे दें उनके और वो पैसे कहीं और लगा देंगे. तो पार्टली यू आर राइट एंड पार्टली यू नॉट. यू नो ये मिसकंसेप्शन है इसका. आपने एक तीसरी इंडस्ट्री का कहा, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा किसका कहा, बट ज्यादा हमारे यहाँ मीडिया पर अब चीजें कहते हैं. देयर इज नो ट्रूथ इन इट. लेट कंपटीशन प्रिवेल. आपस में मुकाबला करवाएं लोगों का तो हर चीज की कॉस्ट कम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. मियां साहब, मेरा ये सवाल है बिजनेस स्पेसिफिक, तो काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं. आपने माशाल्लाह काफ़ी कुछ अचीव किया अपनी पूरी करियर में. माय क्वेश्चन इज़ कि जब आप शुरू कर रहे थे, जैसे आपने कहा आपके वालिद साहब भी जल्द वफात पा गए थे, तो आपकी मोटिवेशन क्या थी कि आपने क्या टारगेट अचीव करना है? बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है या किसी सोशल स्टेटस को पार करना है? आपकी मोटिवेशन क्या थी कि आपने अपने टारगेट्स को अचीव करना है? थैंक यू. देखिए जी, मुझे एडवांटेज ये था कि आई केम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली. तो माय फादर डाइड वेरी अर्ली आल्सो. तो मुझे ये टारगेट्स और ये चीज़ों की कोई नहीं थी. आई जस्ट हैड टू वर्क एंड आई लव वर्किंग. मुझे किसी दिन काम ना होना तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ. इवन ऑन संडे आई गो टू माय फार्म. तो ये मोटिवेशन ये है टू सक्सीड. और हमारी जो सिस्टम है बरादरी इसका, हमारी जो आई कम फ्रॉम चिड़ियो, तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी काफ़ी है. बट आई डोंट नो एनी अदर थिंग देन वर्किंग. मुझे एक ही चीज़ आती है, मैं वो करता हूँ, यू नो. बट आई हैव बीन वेरी blessed and very honored, you know, of having gone out and done few things in different countries. So motivation यही होती है. It's not the money. You can't spend. We are all sitting on a trust in businesses. कि हम चले जाएंगे, कोई और आके इसको चलाएगा, तो ये चलती रहेंगी. But I do feel कि when I go abroad and I see कि हम लोग पीछे रह गए हैं लोगों से, तो ये मुझे बड़ा दुख होता है. मेरे पास अब टाइम नहीं है आपसे ये सारी बातें करने. But I tell you a small incident. Few weeks ago, I was in Dubai. तो हमने वहाँ पर, हमारा ये ख्याल था कि दुबई के लोग हमारे जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ पर हमारी इंटरेक्शन हुई दुबई की गवर्नमेंट के साथ. एंड द अमेरिकन कमांडर जनरल पैट्रियस वर देयर, द चाइनीज वर देयर. मगर वहाँ भी 4 वजीर उनकी आई, 40 साल उनकी उम्र थी. एंड दे वर ऑल 4 women. They were so well equipped. किसी ने कोई, you know, एक मिनिस्टर थी फॉर स्पेस, और उन्होंने देखे दुबई ने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया स्टैंडिंग मार्च पे बंदा. दिस वुमन वाज द मिनिस्टर ऑफ स्पेस. देन देयर वाज द मिनिस्टर ऑफ फूड सेफ्टी. उस डेजर्ट में उन्होंने जो एग्रीकल्चर का प्रोग्राम बनाया, इट्स फैंटास्टिक टू हियर दैट. बिल्कुल दे वर यंग गर्ल्स, यू नो, उनकी मिनिस्ट्री में. दे फिर एक ये जो 2020 एक्सपो की वजीर थी. एंड शी टोल्ड मी कपल ऑफ मंथ्स अगो कि सबसे बड़ा स्टॉल जो होगा एक्सपो में विल बी ऑफ इजराइल. सबसे बड़ा स्टॉल होगा इजराइल का. फ्यू मंथ्स अगो शी टोल्ड मी. और आप देख लें कि उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया. एंड ऑल दीज कंट्रीज आर नाउ रिकॉग्नाइजिंग इजराइल. आई एम नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ थिंग्स, यू नो, बट आप देख लें नाउ देयर आर सो मेनी फ्लाइट्स कमिंग इन फ्रॉम इजराइल टू दुबई. और इनोवेशन, Israelis are now doing agriculture with salt water. तो ये चीज़ें हैं ना, ये हमें भी अब ये जो सारी नाराज़गी है ना, देखिए पाकिस्तान इज सो ब्लेस्ड. एक तरफ हमारा चाइना है, एक तरफ हमारा इंडिया है, एक तरफ हमारा अफगानिस्तान है, और एक तरफ ईरान है. All these countries, and 40 to 50% of the world's population is in this part of the world. So we have everything going for us, you know. Younger population, you know. That is also one of the reasons we don't have so much. Corona का reason is that we have younger people. तो हम लोगों को अब ये सारे टैबूस छोड़ के let's get the best of everything. और ये देखें उनके
जो उन्होंने दुबई, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि दुबई इज नॉट सच अ गुड, बट हाँ उनका IT मिनिस्टर भी आया, मैं बातें तो ज़रा ज़्यादा कर रहा हूँ, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये तुम्हारी 31-32 साल उम्र है, तो कहता है हाँ माई CV जब शेख मोहम्मद ने देखी ऑन अ फ्राइडे, Saturday he offered me the job, and on Sunday I was on the job and I was on my honeymoon. So he said that was the shortest honeymoon anybody's had कि मैं Sunday को I was on my job. ये होता है काम करने का तरीका. जी, अस्सलाम वालेकुम मियां साहब. My name is Asad Tariq. I'm in the logistics and transportation sector. So मेरा question था आपसे कि what is your general advice for Pakistani businesses or businessmen who would like to go big or to scale up and take their businesses to that next level? Thank you. बेटा, I think you said a very fine question. I think ये जो हमारी logistics की भी बहुत problem है. If you bring a container from Hong Kong, and some of those people like Anis and all these people know, Hong Kong से एक कंटेनर कराची लाने में $150 लगता है, और वो ही कंटेनर कराची से मुल्तान लाने में $400 लगता है. So we are very very inefficient in the logistics, and when logistics are expensive, तो फिर your businesses become uncompetitive. तो ये भी एक चीज़ है. ये DP World एक कंपनी है दुबई में, and I was talking to the minister and they have ports in New Jersey, South America, so many countries, in Pakistan also they have a share in the port. So हमें अपनी ports को भी competitive करना पड़ेगा, because हमारी ports are not competitive. जब मैं सीमेंट एक्सपोर्ट करता हूँ कराची से, तो मुझे $6 लग जाते हैं वो पोर्ट के खर्चों में, तो मैं I can't be competitive. तो हम यही मेरी अभी उस दिन प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई है. We are looking at making a new port in front of गडानी, जहाँ पर ये कराची के सारे जो यूनियनाइज्ड लेबर है, जो शहर के अंदर से गुजर के जाना पड़ता है. तो लॉजिस्टिक्स में भी now the Japanese have also got a corridor, a special corridor between Bombay and Delhi. वो ट्रेनें चलाते हैं. आप देखेंगे ये जो रेलवेज है हमारी, ये इतनी अमीर होती थी, ये रेलवेज इतनी अच्छी होती थी पाकिस्तान की, you know. तो वो जब अंग्रेज इन रेलवेज को छोड़कर गए, तो उस वक्त जो बजट बनता था पाकिस्तान का, तो उसमें कहा जाता था, जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक है, कि ये अगर बजट का डेफिसिट उस वक्त भी था कि ये इतने पैसे टैक्स आएगा, ये खर्चा है. द बैलेंस ऑलवेज गोरे के बजट में लिखा होता था कि इंडियन रेलवेज विल फाइनेंस. इतनी अमीर होती थी ये रेलवेज. इसका हमने सत्यानाश कर दिया. इसका भी बड़ा सिंपल तरीका है. वो ये है कि जब मार्गरेट थैचर ने प्राइवेटाइजेशन की यूके में, तो रेलवेज को भी प्राइवेटाइज किया. व्हाई कांट वी हैव वन कंपनी, लॉजिस्टिक्स की तो बात कर रहे हो, जो सिर्फ पटरियों की कंपनी हो, जो हमारी ट्रैक्स को मेंटेन करे. उसके ऊपर जो बंदा ट्रेन चलाना चाहता है, देयर शुड बी, जिस तरह वहाँ पर चला रहे हैं ये ब्रॉन्सन चला रहा है अपनी वर्जन ट्रेन, स्कॉटिश ट्रेन, तो ये पटरी की एक कंपनी हो और बाकी कंपनी जो है ट्रेनें, जिस तरह एक बस है वो उसके ऊपर चलाई जाए. आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी. जब आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, you'll become competitive, you'll get more jobs. So railways used to be a very very rich organization. When Bhutto came to power, उस वक्त तक उसका अपना बजट होता था और इतना प्रॉफिट था कि उन्होंने मर्ज कर दिया विद बजट, और अब वो लॉस में. कैन यू इमेजिन लॉजिस्टिक्स में $4 बिलियन PIA का लॉस है, 32 जहाज है. कैन यू, आप समझ सकते हैं कि $4 बिलियन कितना है. इसी तरह ये एयरपोर्ट जो है आपके, ये ऐसे लगता है जब एयरपोर्ट जाते हैं तो धक्केशाही में लगता है कि आप किसी थाने में आ गए. एयरपोर्ट नहीं है. Why can't we privatize these airports? There will be facilities. मसलन कोई डेंटिस्ट वहाँ बैठा हुआ है, हमारा कुछ रिश्तेदार है अमेरिका से आते हैं, वो अपनी डेंटिस्ट्री यहाँ पर आके कराते हैं कि वहाँ बहुत महंगा है. तो एयरपोर्टों को हम, आप देख लें, हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन में इज ओन्ड बाय अ स्पेनिश ग्रुप, गैटविक बाय फ्रेंच RDF है, टर्की उनके भी प्राइवेट है एयरपोर्ट, इंडिया में भी प्राइवेट हो गया. तो ये हमारा तमाशा जो है लगा हुआ, इसको ख़त्म करना पड़ेगा. इससे मोर रिसोर्सेज और सिस्टम में एफिशिएंसी आ जाए. तो ये चीज़ें जो है लॉजिस्टिक्स में, ये आप लोग भी कहें कि ये चीज़ों को करें और इन चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दें तो बहुत बेहतर होगा. And we have the workforce for it. We have so many young people that we could definitely. How do you see the current situation after 5 years in Pakistan?
and what type of industry you see will be coming up in Pakistan, because other than textiles, and is you feel that the government is interested to allow investors and SMEs to grow here? जो हमारे पाकिस्तान में करेंसी की सूरत हाल है, एक साल के अंदर कुछ सालों में वेरिएशन हो चुकी है. Well, there will be a lot of new industries which we can explore and we should explore. देखें, जो है ये industries like hospitals हैं, जहाँ आपका भी तल्लक है बीबी, ये business होनी चाहिए. Lot of people should come from abroad. उन्होंने इलाज कराना है, वो पाकिस्तान में आए. Why can't we do that? You know, this should be one of the industries. इसी तरह religious tourism is a low-hanging fruit. जो लोग यहाँ से गए हुए हैं बाहर, ये सिख जो थे करतारपुर वाले, इस तरह और भी कई रिलीजन वाले लोग हैं, यहाँ पर आए, उससे हमारे होटल इंडस्ट्री चलेगी, ये चलेगी, नई चीज़ें. और इनोवेशन, ये जब आप गवर्नमेंट को निकाल देंगे ना सारी चीज़ों में से, तो टूरिज्म. इसी तरह ये जो स्कूल हैं, यहाँ पर बड़ा क्रिटिसिज्म है स्कूलों का कि ये बड़े फीसें चार्ज करते हैं. अगर ये ना हो तो आपको समझ आ जाए कि बच्चों को कहाँ डालना है. तो लेट देयर बी कंपटीशन. There will be cheaper schools, medium-type schools, you know. तो ये भी एक industry is natural to us कि हम लोगों को बाहर से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए, मिडल ईस्ट से आए, जहाँ से भी आने, तो काफ़ी नई इंडस्ट्रीज निकलेंगी. IT is another industry. तो हमारे बैंक में हमने 2-3 लोगों को फाइनेंस किया है जो कि सिस्टम लिमिटेड है वन ऑफ देम. यहाँ से वो जो IT के एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनका जनरली कोलेटरल नहीं होता, बट रिसीवेबल्स होते हैं बाहरले मुल्कों में. So we arrange loans for them from our operations abroad. वो there be lot of new things. और मेरे से ज़्यादा तो आप बच्चे हैं, आपको ज़्यादा चीज़ों की समझ आएगी कि आप एक दफ़ा कंपटीशन करें, अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर, और लोग पढ़ भी जाएंगे. आप फिक्र ना करें कि कौन पढ़ाएगा, क्या होगा इसका. तो you know there are so many things that we, रेलवेज को प्राइवेटाइज करें, ये एयरलाइनों को खोल दें, काफ़ी नई चीज़ें आएंगी इसके साथ. Indeed, because अभी pandemic में we saw as Chukai Lab was stepping up, जहाँ पे government अकेली इतने बड़े scale का challenge किसी government ने भी दुनिया में नहीं देखा था, तो private sector really helped. Assalamu alaikum sir, it's a pleasure to speak with you. I wanted to ask you, आप इतने सारे businesses run कर रहे हैं, how do you manage your time? Well, I think we have, you know, we employ more people than anybody else other than the army in Pakistan. So we have good people, there are very good professionals, and mostly young people are very smart. I've seen that, you know, ये जो पुराने taboos नहीं हैं, they come with fresh minds and all that. So I do spend time, but we have very good people who do different things, you know. और हमारी family में एक बड़ी advantage है, I think you also have that, and that is that all our family में सारी औरतें भी काम करती हैं. मेरी बीवी शी रन्स निशात लेनन, मेरी बहू है होटल चलाती है, you know one of them, and malls and all that, you know. एक मेरी बहू है वो डेयरी हमारे पास जाती है. We have a very large dairy. Every day she travels 100 kilometers after dropping her school, बेटी स्कूल पे. तो काम पे लगाएं. आधी पॉपुलेशन जब काम नहीं करेगी ना तो ये मुल्क भी नहीं चलेगा. तो सारा नु काम पे लाओ. फिर वो टाइम डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, वो सारे ही काम करेंगे और उनको कामों पर लगा दें. The person who will succeed in life is the person who has the knack of getting good people to work with him. तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है. जब रोनाल्ड रेगन बना ना अमेरिका में प्रेसिडेंट, तो उसके साथ he was an actor, 67-year-old man. तो उससे उन्होंने पूछा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कि सुबह 7:30 बजे you have to be in the basement and we will tell you how दुनिया में कितने प्रॉब्लम है, उसके क्या डिफरेंट सॉल्यूशन है. तो रेगन ने उसको जवाब दिया, look, I ain't going to get up at 7:30 in the morning. I'll have good people. So in the American history since the war, his government was the most successful they claimed. तो उसने अच्छे बंदे, वाइनबर्गर, शोल्ट्स, जेम्स बेकर, वो सारे अच्छे बंदे जो है ना उसने लगा दिए. So anybody who has to succeed at any level, जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट चलाने, उसको अच्छे बंदे रखने पड़ेंगे. And we have so many good people, and especially I'm a little bit biased towards women.
औरतों को ज़्यादा लगाएं काम पर, they will be more loyal, they'll do a better job also. Manja Sahab, your grandson and my niece are in the same class. My niece is also Dr. Umar Chugta, his daughter. They are in kindergarten right now. So I think that it's a very good thing that, you know, girls and boys are getting good quality education. She is making her network and he is making his network right from kindergarten. And I think the future is bright if we have the same kind of education for and opportunities for girls and boys in our younger generation. Another question, as a new entrant in Pakistan's automotive industry, how has your experience been? And working with Hyundai, do you think Pakistan has the engineering capacity to develop into a regional car industry hub? जी, I think ये बात बड़ी अच्छी आपने की है. इसके लिए स्केल चाहिए, you know. उसके लिए maybe if we can get our relationship with India better, so we should not consider Pakistan market as our market. देखिए, अफगानिस्तान is more or less, as I said, 35 मिनट यहाँ से लगते हैं अफगानिस्तान जाते हुए. So we should export cars also in the long run. We are now doubling our capacity. But मुझे तो नहीं, I didn't realize that one car that we have just launched, हमें 6 महीने के उसके पैसे आ गए हैं लोगों में, और सवारियाँ आ रही हैं सारा दिन, क्योंकि हमें गाड़ी चाहिए. तो वो जो है इसको हम स्केल अप करते हैं, and इंशाल्लाह कार इंडस्ट्री should be, it should become a regional industry. And then parts जो हैं कुछ हमारे हम बना के हमारे नेबर्स को देंगे, कुछ वो हमें देंगे. सो स्केल हर तरफ आ जाए. जब भी कुछ मुल्क एक दूसरे से ट्रेड करते हैं किसी को नुकसान नहीं होता. आप देख लें मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा, NAFTA, लोगों ने कहा जी वो सारी चीज़ें मैक्सिको चली जाएंगी, किसी ने कहा ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, उसका फ़ायदा हुआ. लुक एट द यूरोपियन यूनियन, डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, जर्मनी, फ्रांस, सारे मिल गए. तो उन्होंने मिल मिला के all these countries with a bigger market, they have reduced their cost, specialties अपनी है. तो इंशाल्लाह ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी चलेगी. अभी तो मैं लोगों से छुप रहा हूँ कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो वो लेना चाहते हैं, सारा दिन सवारियाँ आ रही हैं. तो that's not a very nice thing. Competition होना चाहिए. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टॉपिक है फैमिली बिजनेस से रिलेटेड. जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं या बिजनेसेस हैं उसमें एक फैमिली बिजनेस का बहुत बड़ा एलिमेंट है. आप इस टर्म से कितना एग्री करते हैं और आप क्या रेकमेंड करेंगे? एक सर्टेन लेवल के बाद पाकिस्तान में फैमिली बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, तो आप क्या गाइड करेंगे कि लोगों को इस पे कैसे मेंटेन करना चाहिए ताकि उनका फैमिली बिजनेस और रिलेशनशिप दोनों सस्टेन करें? मेरा सेकंड पार्ट ये होगा कि एज अ बिग बिजनेसमैन इन पाकिस्तान, does Mansur Saab spend his time with the senior management or he spends his time with the young leadership? और आप यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान में भी जाते होंगे, आपका क्या ख्याल है कि स्टूडेंट्स इतने कैपेबल हैं कि वो आज ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में रोल प्ले करें? थैंक यू. The question of the family businesses, if you look at maybe China is an exception, but I think if you look at America, Europe, UK, all these countries, businesses generally start with family businesses, you know. और उसके बाद as they become bigger and bigger, then और लोग भी obviously more people come into the business because families also expand होती हैं. तो उसमें ये है कि सबको अच्छा स्टार्ट है, मगर ultimately you know जब बहुत businesses बड़ी हो जाती हैं तो you have to depend on professionals. And there are very good professionals in Pakistan. आप उनको चांस दें, ये बड़े अच्छा काम करते हैं. तो ये हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने आज तक ये बिजनेस को स्केल ही नहीं किया. जब बड़ी बड़ी बिजनेसेस बननी शुरू हुई तो मोटर साहब ने नेशनलाइज कर ली in the 70s. उसमें इतना बड़ा झटका लगा कि उसके बाद जो उस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो सारी नेशनलाइज हो गई. उसके बाद फिर लोगों ने स्टार्ट किया, तो अब फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जगह बना रहे हैं लोग, तो ये इंशाल्लाह एज ए बिकम बिगर दे हैव टू प्रोफेशनलाइज, उनको करना पड़ेगा. तो उसमें इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ मिक्सचर. एंड देन फ्रॉम प्रोफेशनल कैन एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे. काफ़ी लोग जो हमारी कंपनियों में काम करते रहे, मेरे पास लम्स के, आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन इन द इनिशियल स्टेजेस. आई हैड 80 स्टूडेंट्स हु
came from the first and the second class. अब उनमें से more than half are entrepreneurs. तो उन्होंने अपनी अपनी businesses बना ली हैं, and I'm very happy. मेरे पास कई लोग आके कहते हैं कि जी ये आपकी competitive businesses में ये कर रहे हैं तो आप इनको पैसे ना दें, आप loans ना दें. मैंने कहा no, why not? If the bank's job is separate from my other businesses, you know. So we will, और काफियों को हमने finance किया, and some of them are now very important business leaders in Pakistan. Thank you for organizing this session again, Mariam. You've been doing really well. I have a really short question to Manshad Saab. Manshad Saab, what is your take on fintech in Pakistan, the role of mobile wallets in digitizing Pakistan's economy? And do you feel that there is space for new entrants, young companies to enter into mobile wallets and fintech space, or is this going to be dominated by the existing banking players or the bigger players only? No, I think smaller companies will be coming into it. The banking scene is all going to change. In years to come, ये जो brick and mortar system है हमारा कि ब्रांचें होंगी और वहाँ पर लोग जाएंगे, ये सब आहिस्ता आहिस्ता diminish होता जाएगा. People will work out of their phones, from their wallets, ATM machine. तो इसमें एक revolution आने वाला है. And if we don't change with that, the banks, we will be swept aside. तो बड़ी investment हम सारे बैंक भी कर रहे हैं. And also now the competition is coming from these telephone companies also. Telenor has a Microsoft, you know. Then other companies are also coming in. So ये अच्छा है. The more the competition, the better it's going to be, and it will give us more people can just do things from their house, and more jobs will be. But छोटे कंपनियां भी काफी आएंगी. We might buy them out at some stage, but वो जो है उनकी innovation जो है comes from people who are doing जैसे छोटे businesses जो बनाते हैं. आप देख लें ये सारे ये Facebook, all these companies were small companies have now become very large companies because innovation, nobody has a monopoly on innovation. तो ये जरूर आएगा. This is the next field and we have to compete in it और इसको हमने लाना है. It will reduce our cost and the convenience to people in doing business. अब ये जो कोरोना है इससे भी हमने बहुत चीजें सीखी हैं कि काफी चीजें घर से ही हो सकती हैं. Which we were just going to the offices. Now we realized कि ये तो सारी चीजें हम गलत कर रहे थे. तो ये चीजें हम, you know, this all will come down to the fact that this में बहुत जो भी इसमें करना चाहता है जरूर करे. If anybody needs our help, we can give it. Anybody, you know, any ideas, we are welcome. Manshad Saab, we're coming towards the close of our time. We've taken so much of your time. The last 2 or 3 questions. One question is that आप पाकिस्तान की currency exchange outlook, particularly dollar rate के बारे में अगर कोई comments share करना चाहें कि what does that look like to you? As long as we have this big deficit between import and export, तो ये currency हमारी ज़रूर depreciate होती जाएगी. And sometimes depreciation of the currency is not all that bad, but a very big change is not a good thing. So I would recommend that we do depreciate our currency by 6-7% maximum. उसको करते जाएं. उससे ये होता है otherwise 5-6 साल के बाद झटके से हमें बहुत बड़ी devaluation करनी पड़ती है. But the devaluation, it has its disadvantages, but it has its advantages. It creates, you know, wealth creation हो जाती है. मसलन आपने $100 डॉलर पर लेकर आपने कोई मशीनरी मंगाई है और आज 150 हो गया, तो it has actually your wealth has been created by that also. So ये कोई बुरी चीज नहीं है exchange का, but it should be competitive with our inflation, with our interest rates, you know. तो ये इसकी हो सकता है हमारी करेंसी तकरीबन थाई बात के बराबर होती थी, फिलीपींस की करेंसी के बराबर होती थी. अब उनकी करेंसियाँ वही 50-60 रुपए पर है, हम 160 पर है. बांग्लादेश की करेंसी इस हाफ आई थिंक उनका टका जो है 60-70 रुपए टू डॉलर है. So we have depreciated because of ये सारा जो हमारे internal problem है ना, change of government, आगे पीछे ये सारी चीजें. But if we have a stable economy, maybe 5-6% should be enough. I think we shouldn't devalue more. Thank you. There's another question. Generally, there are 3 types of industries: declining industries, sustaining industries, or growing industries. What
should an entrepreneur who is stuck in a declining industry do to fight back and to get better results? I didn't understand which were the declining industries that you said. The question does not give example, but there's a disruption now in a lot of industries. For instance, आपने जो बात की कि a lot of people are working from home. There's an article in The Economist that's talking about the real estate industry is going to really transform because corporate rental space is going to go down. So what is your advice for those entrepreneurs who had just launched and started to get settled and were hoping to grow in an industry, but the pandemic has disrupted those industries? जी ये चीज़ ज़रूर है. There are winners and losers in any given situation. So they must look at what they can do with that space. अब देखिए लंदन वगैरह में बहुत सारी hotels are being shifted into apartments लोग बना रहे हैं. और so they need to be more innovative कि वो क्या चीज़ें कर सकते हैं. New businesses have come up. I know people जो कि आगे चल के खाने लोगों को घर पहुँचा रहे हैं, in a big way. They're doing that in America. Some people have come back again कि वो एयर कंडीशनिंग आपकी जो सेंट्रलाइज है वो आके वो फिर छोटे छोटे यूनिट लगा रहे हैं. So they need to think कि जो भी उनके पास real estate है, how you can convert them into different things. Maybe you can make them into schools also. I don't know. तो ये individual चीज़ है जो खुद उनको देखनी पड़ेगी. But obsolescence is a very big problem. जिस तरह मैंने कहा कि ये पावर प्लांट्स में भी obsolescence इतनी तेजी से आ रही है कि जो चीज़ 6-7 साल पहले वायबल थी वो आज वायबल नहीं है. ये गैस टर्बाइंस मसलन I don't believe this country needs any dams also. The electricity made from dams is going to be very expensive in the long run, other than the ones which store water. तो ये जो चीज़ें हैं जो इनमें चेंज आएगी, and with innovation we can improve and survive. Final question, Mancha Saab. What is your advice on how a Pakistani businessman can go big? Well, I think he can go big is one, he needs to, there's no such thing as, मैंने तो देखा है अगर काम सही तरह करा जाए, ईमानदारी से, keep your books, don't try to do small things like tax वगैरह बचाने का नुकसान होता है. If you put that money back into your balance sheet और अपने कारोबारों में लगाएंगे तो आपके you can borrow cheaper, you can do expansion. If bad times come, you sustain. ये जो कंपनियों से पैसा निकाल के और वो कहीं और रख देना या कुछ और चीजें कर देना, कंपनियों को बड़ा बनाए. They should be, they could borrow money, they could do हर चीज उनके लिए दरवाजे बहुत सारे खोल जाएंगे. तो इसलिए जो चीजें हैं जरा इसको और ईमानदारी से काम करें. कोई फिक्र ना करें कि मैंने हमेशा देखा है जो लोग गलत काम करते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं. So honesty and hard work is the thing to do. And Mancha Saab, any final message for the participants that you engaged with today? Would it be all right if in a couple of months we asked you for another session with us? Any thoughts for us? Final thoughts? जी बिल्कुल. As I said, you can come to my farms. We can take a group there. किसी वक्त जरा मौसम भी अच्छा हो जाए और जिस तरह भी आप करेंगे तो I am always there. I enjoy talking to people, especially younger people. And you are the future of this country. आप लोगों ने ये सारी चीजें, and we can share a lot of our experiences, which are very. I am the only Pakistani who was invited to White House once, by Obama. I met the British Prime Minister one day, David Cameron. और इससे बात करेगा कि क्या काम करना है. कहते हैं, why don't you come to UK and do business here? So all these young people should be so talented कि इनके लिए दरवाजे सारे खुल जाएं. And there are many countries, which we think are backward. You go there, इतनी ज़्यादा facilitation होती है और खुश होएं कि जो बंदा कोई कामयाबी से करता है. Let's cheer them rather than इन्हें चोरी की थी है, इन्हें नई गड्डी खरीदी है, कोई ना कोई कपड़ा है इसमें. Let's get out of this. Mancha Saab, thank you so much for your time. My apologies to so many other questions that came, follow-up questions, comments.
this just means that inshallah we will have to do an in-person meeting with you soon. On behalf of EO Lahore and our guests from EO Islamabad and Karachi, I thank you once again. And then we can also have we can meet everybody if they want. We'll get all of them together in one place. Okay? Wonderful, wonderful. Thank you very much. Thank you. Pleasure. Mehrbani.